Good morning, students. Today we start chapter first of Geography, Resources and Development. Before we start our chapter, we must know about the meaning of geography. Geography is an English word which derived from the two Greek words geo plus graphia. Geo means earth. Geo plus graphia. Geo means earth and graphia means to study. So in simple way we can say geography means the study about earth, that is known as geography. Who is the father of geography? Eratosthenes is the father of geography. भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिकेटियस ने किया था, लेकिन जो ज्योग्राफी वर्ड है वो ज्योग्राफिका के रूप में इरेटोस्थनीज ने क्या किया था, यूज किया था. दैट्स द रीजन दैट हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इरेटोस्थनीज. कम टू आवर पॉइंट ऑन आवर चैप्टर. आफ्टर डिस्कशन द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, दैट ज्योग्राफी मीन्स the study about the earth crust, about the physical features, about the environment like the atmosphere, lithosphere, hydrosphere and then biosphere. We all are the part of biosphere because biosphere means home of living things. So let us start our chapter, that resources and development. Look at your surrounding. We can see different objects in our environment. अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सी वस्तुओं को हम अपने चारों तरफ देखते हैं. These are very important things for sustaining our life. ये वो सारी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन को क्या करती है, बनाए रखती है, सस्टेन के रखती है. इन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है. This is a marker and this marker is satisfy my need because with the use of this marker I am writing on this whiteboard. So it is satisfying my need. What is it? It is also a resource for me. ये एक संसाधन है मेरे. What is this? This is a whiteboard. It is also satisfying my need, that is also known as resources. So let us start with the definition of resource, that anything available in our environment which can be utilized to satisfy our needs are called resources. कोई भी वस्तु जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं. So anything which is available in our environment can satisfy human needs are known as resources. But a goods can become a resource after the three conditions. First of all, technologically that good is accessible. तकनीकी रूप से हमारे पास वो तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए कि हम उस वस्तु का क्या कर सकें, यूज कर सकें. इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक रूप से वह क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से वह क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य होना चाहिए. तभी हम एक वस्तु को क्या कर सकते हैं, संसाधन का रूप दे सकते हैं. तो कोई भी वस्तु रिसोर्स कैसे बनती है, जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती है, इकोनॉमिकली फिजिबल होती है और कल्चरली क्या होती है, एक्सेप्टेबल होती है. नाउ देयर इज अ ट्रायंगल which show that nature, technology and institutions are interdependent. In this triangle, in between of this triangle, there is human being, which is the most important creature made by God on this earth. इस पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई रचना भगवान की है तो वो किसकी है, ह्यूमन बींग्स की है. क्योंकि कोई भी वस्तु जो है वो किसके लिए संसाधन है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होती है, रिसोर्स होती है, संसाधन होती है. In this triangle, we are discussing here that what is the relation between the nature, technology and institutions. Before we discuss, there is an example that manufacturing of a car from iron and steel. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इस ट्रायंगल को रीड आउट करने के लिए कि एक कार को बनाया गया किसका यूज करके, आयरन एंड स्टील. तो यू नो दैट आयरन हमने कहाँ से लिया, माइनिंग प्रोसेस से लिया, नेचर से लिया. तो हम नेचर से हमने क्या लिया, अपना आयरन ले लिया, आयरन ओर ले लिया, जिसको हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं. आयरन और स्टील को हमने कहाँ से लिया, नेचर से लिया. मैन्युफैक्चरिंग इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. और ये टेक्नोलॉजी जो है
यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग के रूप में यूज हो गई। और जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस बन के आया वो क्या बन के आया, कार बन के आया। तो इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, माइनिंग का यूज करके आयरन को हमने निकाला, टेक्नोलॉजी से उसको क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, और मैन्युफैक्चरिंग का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, कार। तो इस ट्रायंगल का सीधा सा एक रिलेशन है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इस अर्थ के ऊपर क्या करता है, जितने भी गुड्स होती है उनको अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, उनका यूज करता है। सो इन दिस ट्रायंगल देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग, nature, technology and institution, and the example of this that manufacturing of a car from iron and steel. So this triangle shows that the relation between the human being, nature and technology. Now we discuss about that the types of resources, that the classification of resources. When we define about the classification of resources, that there are mainly three types of resources. First type, that is natural resource. The resources which are given by nature are known as natural resource, like land, air and water. These are the examples of natural resource. Second is human resource. You know that the population of a country and with their capabilities, that is known as human resource. So we are discussing here about the types of resources. So mainly the resources have three types. First one is natural resources, the resources which are given by nature, like land, like air, like water, etc. Next, human resources. Human resources means that द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री विद देयर कैपेबिलिटीज, एक देश की जनसंख्या और उसकी योग्यताओं का समूह ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ, लाइक द बिल्डिंग्स, लाइक हाउसेज, लाइक दिस मार्कर, लाइक फैन, like AC, etc. All these are the examples of human-made resources. So mainly there are three types of resources: natural resources, प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं, like land, air and water. Human resources, the population of a country with their capabilities, that is known as human resource. And human-made resource, the resources which are manufactured by human beings for living a comfortable life, that is known as the human-made resource. Next topic is the classification of resources. Classification of resources. We can classify the resources on the various bases. First, on the basis of origin. उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है बायोटिक और सेकंड होता है एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम बायोस्फीयर, इट मीन्स दैट दे आर द लिविंग रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज like animals, like humans, like plants, etc. All these are the examples of biotic resources. The resources which having life or which are composed by living things or which we are getting from biosphere, जिनको हम जीवमंडल से प्राप्त करते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, उसको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं. अबायोटिक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच डू नॉट हैविंग लाइफ, जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, एंड विच आर कंपोज बाय नॉन लिविंग थिंग्स लाइक द रॉक्स एंड मेटल्स. जितने भी चट्टानें और आपकी क्या हैं, आपके धातुएं हैं, वो सारे किसके अंदर आती है, वो आपकी अबायोटिक रिसोर्स में आती है. सो द फर्स्ट classification of resources on the basis of origin, that biotic resources and abiotic resources. Next one is on the basis of exhaustibility. समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. The resources which get renewed after a short period of time by physical and any chemical process. जिन संसाधनों को हम थोड़े समय के बाद
किसी भी प्रक्रिया के द्वारा पुनः उसका हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। द रिसोर्सेज which get renewed after a short period of time by any physical or chemical process that is known as renewable resource. Example of this resource is solar energy, wind energy, tidal energy, etc. Next one is non-renewable resource. The resources which do not get renewed after a short period of time because it take a long period of time for their formation. वे संसाधन जिनको हम थोड़े समय के बाद किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा वापस पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। These resources take a long period of time. It means millions of years. लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इन संसाधनों को बनने में। And the example of these resources are like coal, like petrol. These are the examples of non-renewable resource. So on the basis of origin, there are two types of resources, biotic and abiotic. And second one is on the basis of exhaustibility, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, renewable and non-renewable. Next, we start that on the basis of ownership. अब next जो classification आता है वो किसके बेस पे आता है, ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर कि मालिकाना हक उस पर किसका है, वो अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. सो फर्स्ट काइंड ऑफ रिसोर्स दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स. इंडिविजुअल रिसोर्स. On the basis of ownership, we can classify the resources in four parts. We discuss one by one. First of all, we are discussing here about individual resource. The resources which are owned and operated by individual, that is known as individual resource. For example, farmer's well. एक किसान का जो कुआं होता है, farmer's well. अपने अपने घर जो है हमारे, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। वे सभी संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, उन्हें इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स इज दैट इज कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्स कौन से होंगे, द रिसोर्सेज विच आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द कम्युनिटी. वे सभी संसाधन जिनको एक समाज, एक समुदाय क्या करता है, उस पर अपना नियंत्रण रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। अब कम्युनिटी रिसोर्स में क्या क्या आ जाएंगे, आपके पार्क आ जाएंगे, पब्लिक पार्क्स जो होते हैं, आपके विलेज के क्या होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे, एक्सेट्रा. ये सब आपके कौन से रिसोर्सेज हो गए, कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गए. नेक्स्ट आता है बच्चों नेशनल रिसोर्स. नेशनल रिसोर्सेज इन सिंपल वे, किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स है, वो सभी किसके अंदर काउंट होते हैं, नेचुरल रिसोर्स के अंदर काउंट होते हैं. द रिसोर्सेज which are controlled and managed by the country's government, that is known as natural resource. रेलवे है हमारे देश के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सब किसके अंडर में आता है, वो सब नेशनल रिसोर्स के अंदर, राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आता है. वन नॉटिकल माइल्स. नॉटिकल माइल्स एक यूनिट होती है जिसमें हम ओशनिक बाउंड्री को मापते हैं. ओशनिक बाउंड्री को मापने का एक यूनिट है जिसके अंदर 1.852 किलोमीटर होता है, और लैंड पे होता है 1 माइल्स, जिसमें 1.609 क्या होता है, किलोमीटर होता है. किसी भी देश की कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज ओशन के अंदर, सीज के अंदर पाए जाते हैं, वो भी किसका पार्ट होते हैं, वो भी नेशनल रिसोर्स का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं. लेट अस रिवाइज अगेन. व्हाट आर नेशनल रिसोर्सेज? The resources which are found inside the boundary of a nation and controlled and managed by the government of country, that are known as national resources. The resources which are also include that from the coastline of a nation 12 nautical miles, एक देश की तटीय सीमा से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी संसाधन होते हैं, वो भी आपके कौन से होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स. इंटरनेशनल
resource. The resources which are owned and operated by more than one nation of the world. It means that they are free to use for the different nations. वे सभी संसाधन जिस पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक द यूएन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वो इनको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। कोई भी देश जो होता है वो इन संसाधनों का यूज करने से पहले इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे क्या लेना पड़ता है? उनको परमिशन लेना पड़ता है, तभी जाकर वो इन संसाधनों का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। किसी भी कंट्री के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, कितने नॉटिकल माइल्स के बाद? 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जितने भी ओपन सीज हैं, जितने भी ओशियंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है? यूजेबल हैं। लेकिन उनको यूज करने से पहले यूनाइटेड नेशंस का क्या लेना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। इन सिंपल वे वी कैन डिफाइन द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दैट द रिसोर्सेज विच आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय international organization, and any country can use of these resources with the permission of the international organization are known as international resource, and the example of this resource is the exclusive economic zone. So this is the classification on the basis of ownership. Next, classification of resources on the basis of स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्था के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिनको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और एग्जिस्ट इन नेचर बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड और एक्सप्लॉइटेड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट कांट बी यूटिलाइज्ड in a proper manner because of lack of technology, that are known as the potential resources. वे संसाधन जिनका हम प्रॉपर वे से यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो तकनीक आज उपलब्ध नहीं है कि हम उनका एक बड़े स्तर पर क्या कर सके? प्रयोग कर सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो थर्ड डेजर्ट है, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी है पूरे भारत में तो वो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है, थर्ड डेजर्ट के अंदर है। लेकिन अभी तक हम थर्ड डेजर्ट को क्या नहीं कर पाए हैं? इसकी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। इन सिंपल वे आई वांट टू टेल यू दैट द रिसोर्सेज विच आर यूटिलाइज्ड बाय आवर फोरफादर्स, इट मीन्स पूर्वज हमारे उनका प्रयोग कर चुके हैं, एंड स्टिल वी आर यूटिलाइजिंग देम, और आज प्रेजेंट में भी हम उनका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। उसको हम कौन सा रिसोर्सेज कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जिनकी क्वांटिटी क्वालिटी का हमें पता है, जिनकी गुणवत्ता और मात्रा का हमें ज्ञान है। Those resources which are surveyed and their quality and quantity determined for utilization are called developed resources. वे सभी संसाधन जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का हमें ज्ञान है, जिनको हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें पीढ़ियों से ये संसाधन हमारे प्रयोग में आते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है स्टॉक, जिसको हम हिंदी में भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडार। स्टॉक कौन से रिसोर्सेज हैं? Resources which are present in our environment but not accessible because of lack of technology are called stock. वे सभी संसाधन जिनका प्रयोग करने की हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास तकनीक ही नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बहुत बड़े एनर्जी रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम वाटर को कैसे लार्ज लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको एज ए एनर्जी रिसोर्स के रूप में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो वाटर किसका एग्जांपल है? स्टॉक का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है रिजर्व्स, संचित कोष। कौन से होते हैं? रिसोर्सेज कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। हमारे पास तकनीक है कि हम वर्तमान में इनका प्रयोग कर सकते हैं, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, परंतु उनका यूज हमने या तो शुरू नहीं किया है या किया है तो बिल्कुल स्मॉल स्केल पे किया है। उसका एक रीजन है बिकॉज दिस कैन बी यूज
फॉर द मीटिंग ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हमने इनको सेव कर लिया है किसके लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसका क्या कर सके, अच्छे से इस्तेमाल कर सके। ये एक सबसे जरूरी चीज है जो मैं अब आपको रिजर्व्स के बारे में, संचित कोष के बारे में बताने जा रहा हूं, कि हमें पता है कि वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हम उसका यूज करते हैं, लेकिन हमने जो रिवर वाटर है उसका बहुत लिमिटेड लेवल के ऊपर, बहुत लिमिटेड स्केल के ऊपर हमने इसका क्या किया है बच्चों, यूज किया है, क्योंकि हमने इस रिसोर्स को फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या कर दिया है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या कर दिया है, हमने इसको सेव कर दिया है, सेव कर दिया है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन इनका क्या कर सके, प्रयोग कर सके। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, that is sustainable development. Sustainable development. Before we start this sustainable development, we must know about the first Earth Summit. The first international Earth Summit कब हुआ, 1992 में। कहां पर हुआ, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो कहां पर है आपका, ब्राजील के अंदर है। मोर देन 100 हेड्स ऑफ डिफरेंट नेशंस, लगभग 170 देश थे जिन्होंने इसके अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। मोर देन 100 नेशंस हैड दे गेट टुगेदर एट रियो डी जेनेरो इन 1992। व्हाट वर द रीजंस, कारण क्या थे, बहुत से ऐसे कारण थे, बहुत से ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स उस समय वर्ल्ड के सामने थे, ग्लोबल प्रॉब्लम्स। अब कौन कौन सी ग्लोबल प्रॉब्लम्स थी, लाइक द फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड था डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट था एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल pollution, and the another reason was that was land degradation, land degradation. Again we revise that the first international earth summit was held in 1992 at Rio de Janeiro, Brazil. More than 100 nations, 170 nations were there. They get together because the world was facing some global problems. And what were the global problems? Global warming increased the amount of carbon dioxide in the atmosphere, that is global warming. और ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा असर किस पर पड़ता है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सारे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ का। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एक गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके कहाँ से निकलती है, जो आपके AC और रेफ्रिजरेटर से निकलती है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। ओजोन लेयर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, यूवीज जो होती है, ये कहाँ से आती है, सन से आती है। ये जो लेयर होती है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और डायरेक्ट कहाँ नहीं आने देती है, अर्थ के ऊपर आने नहीं देती है, जिससे कि हमें क्या हो सकता है, स्किन कैंसर तक का रोग हो सकता है। तो ओजोन लेयर उस समय पतलापन आ गया था, दैट्स वाज द रीजन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, देयर आर मेजर 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एयर, लैंड, वाटर, नॉइज। सो बिकॉज ऑफ दीज सेवरल प्रॉब्लम्स, these people get together at where, at Rio de Janeiro, at Brazil. Next, अब इससे एक सॉल्यूशन निकल के आया। अब बहुत से देश इकट्ठा हुए, उन्होंने एक नया प्रिंसिपल दिया दुनिया को, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Very important topic of this chapter. Sometimes the question will ask in the board examination, sustainability, धारणीयता क्या है, सतत पोषणीयता क्या है। There are 4 important steps of sustainable development. Easy steps. First step, without harming the environment.
Second step, development at present. Third, without compromising the needs of future generation. And the next and the last, judicious use of resources are called sustainable development. क्या है सतत पोषणीय विकास? ये जैसे 4 स्टेप्स आपको याद करने हैं कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वर्तमान में हमें क्या करना है, विकास करना है, और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हुए संसाधनों का न्यायपूर्ण प्रयोग करना है। क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। So in the sustainable development, what we learn, there are easy 4 steps that without harming the environment, development at present, without compromising the needs of future generation, and judicious use of resources is known as sustainable development. So my dear students, today we discussed about the definition of resource, then the classification of resource, then the interrelationship between the nature, human being, technology and institution, and next and the last about the Rio de Janeiro summit, the first international earth summit which was held in 1992 at Brazil, and what were the regions, and the solution was coming from that Rio de Janeiro summit was the sustainable development. Thank you and have a nice day.